مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے, اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. یہ جھوٹ ہے اس کا. آج میں آپ کو اس کے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہا ہے. کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, اور آگے خود اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حوالہ تو دیں کہ کس کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پڑھے خوارج کے. حالانکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگیں کی اور ان کو مار مار کے ان کے ڈھیر بنائے. دیکھیے, اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, تو کیا جواب دے رہا ہے. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں, جو کافر بھی نہیں, جو مشرک بھی نہیں, اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے, بولو نا, گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی, میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشرک نہیں سمجھتے تھے. جب وہ مشرک نہیں ہے, منافق نہیں ہے, تو ظاہر ان کے جنازے ہوں گے. بھائی جنازے ہوں گے, لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے؟ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ نمبر 2 دیکھیں, یہی جھوٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بول رہا ہے. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے, کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے, کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں, تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے. سنن الکبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی, ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں, پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جی دوستو, اس نے حوالہ دیا اپنے ایک ریسرچ پیپر کا, وہ آپ کے سامنے ہے 24 نمبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جو کوئی حی علی الصلاح کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا, یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ اس کا جھوٹ ہے. عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ صحابہ پر اس طرح جھوٹ بول رہا ہے. عربی میں جو اس نے حوالہ دیا بہقی کا 5088 تو نمبر نہیں, یہ ہے نمبر 5305. اس میں کیا ہے, من قال, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حی علی الصلاح, جب حی علی الصلاح کی آواز آئے گی عجب تو میں اس کا جواب دوں گا. جواب کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ومن قال, جو کہے گا حی علی الفلاح عجب تو میں اس کا جواب دوں گا. تو حی علی الفلاح کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے جھوٹ بولا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر. اور مسلم کی پہلی حدیث پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بدعتیوں, خوارج اور قدریوں سے نفرت تھی. وہ ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا کرتے تھے. اب تیسرا جھوٹ اس کا دیکھیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. دوستو, آپ پڑھ کے دیکھیں بخاری مسلم. یہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم میں قبر میں 4 سوالات ہیں, لکھا ہوا ہے. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں, کتاب الجنائز پڑھ کے دیکھیں بخاری مسلم میں. 4 تو کیا 3 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ جھوٹ ہے اس کا. آپ کتاب الجنائز بخاری مسلم کا پڑھیں, اس میں 4 سوالات کا ذکر نہیں ہے, یہ بلکہ 3 سوالات بھی نہیں ہیں. یہ اس کا تیسرا جھوٹ ہے. آئیے دیکھیے اس کا چوتھا جھوٹ. ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے. جی دوستو, آپ نے دیکھا, یہ کہہ رہا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ضعیف احادیث فضائل میں کام نہیں آئیں گی.
देखिए अब खुद ये कहेगा कि मैंने इससे नतीजा अखज़ किया है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नही के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उससे मना करने। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। दोस्तों आपने देखा, पहले इसने इमाम मुस्लिम पर झूठ बोला कि इमाम मुस्लिम ने वाज़ेह तौर पर लिख लिया है कि ज़ईफ़ अहादीस न फ़ज़ाइल में काम आएंगी न अहकाम में। अब कह रहा है कि मैंने इससे नतीजा अखज़ किया है। इसे कहते हैं झूठ है। अब आइए इसका जो पांचवा झूठ है वो सुनिए। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। ये इसका झूठ है कि जामिया तिर्मिज़ी में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। ये झूठ बोल रहा है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर जानबूझ के झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है। देखिए हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला क्या फरमाती हैं, रिवायत है, वही मैं दिखा रहा हूँ जो इसने दिखाया है। रिवायत है हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, फरमाया उन्होंने कि जो कहे तुमसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, सच्चा न जानो उसको, न थे पेशाब करते मगर बैठकर। यानी हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठकर पेशाब करते थे, खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। ये इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार किस तरह फ्रॉड करता है। अब देखिए इसका झूठ नंबर 6। वो कहते हैं नहीं जी, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अल-मुअत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ है, बल्कि इमाम मालिक से इमाम तिर्मिज़ी ने ली है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती मगर ये कि तुम इमाम के पीछे हो। वो कहते हैं देखें ना जी, सही सनद के साथ हदीस है कि इमाम के पीछे हो, फिर फातिहा कोई ज़रूरी नहीं। अल्लाह के बंदो, ये हदीस इमाम मालिक ने लेके इसके ऊपर बाप पता क्या बांधा हुआ है कि जाहरी नमाजों में इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। अल्लाह के बंदो, ये हदीस इमाम मालिक ने लेके इसके ऊपर बाप पता क्या बांधा हुआ है कि जाहरी नमाजों में इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि इमाम मालिक ने बाप बांधा है कि जहरी नमाजों में किरात ना करना। हालांकि उसके नीचे कहते हैं वो हदीस लाए जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो फरमाते हैं कि इमाम के पीछे तो किरात ना करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इमाम मालिक ने जो बाप बांधा है उसके बाद वो हदीस नहीं लाए, इसने झूठ बोला है। वो कहाँ हदीस लाए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोता इमाम मालिक है 282 नंबर, तरकुल किराती खल्फल इमाम फीमा जारफी, कि इमाम जब जारी किरात करे तो उस वक्त किरात ना करे, पीछे मुक्तदी कुछ न पढ़े। 283 नंबर पर हदीस लाए हैं मालिक अन नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जब सवाल किया गया कि जब कोई बंदा इमाम के पीछे हो तो किरात करे या ना करे, फरमाते हैं इदा सल्ला अहदुकुम खल्फल इमाम फासबु किरातुल इमाम, जब बंदा इमाम के पीछे हो तो इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। इसमें न जारी का जिक्र है न सिरी का जिक्र है। एक तो इसने बाप की बात करके झूठ बोला। अब अगली जो हदीस है 384, उसमें क्या है, वकान अब्दुल्लाह बिन उमर ला यक़रउ खल्फल इमाम, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इमाम के पीछे किरात नहीं करते थे। अब इसने जो हदीस बयान की है जाबिर बिन अब्दुल्लाह की, वो मैं आपको दिखाता हूँ और वो मैं आपको बाप भी बताता हूँ कि इसने किस तरह धोखा दिया अवाम को और किस तरह इसने झूठ बोला। ये बाब मा जा फी उम्मुल कुरान 274, बाब 274 मा जा फी उम्मुल कुरान, इसके तहत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला वो हदीस लाए 274। आगे 275 इसमें फातिहा की जो फजीलत है वो हदीस है, बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है उससे अगली हदीस है 276। ये वहदसनी अन मालिकिन अन वहब इब्न कैसान अन्नो समेत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु,
यकूल मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। फलम युसल्ली इल्ला वराल इमाम, यानी कि इमाम के पीछे हो तो फिर फातिहा नहीं पढ़नी। अब बाब क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया। बाब इमाम मालिक ने बताया मा जा फी उम्मिल कुरान, सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में ये बाब है। सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में बाब है। तो इसने झूठ बोला कि इमाम मालिक ने बाब बांधा है कि ऊंची जब इमाम किरात करे उस वक्त तुम खामोश रहो, और बाब क्या है मा जा फी उम्मिल कुरान। तो ये झूठ है इसका। अब आइए इसका झूठ नंबर 7 देखिए। दीनी तालीम आपने जो दिलवानी भी है ना सर, मदरसों में दीनी तालीम तो है ही कोई नहीं है। वहां तो आपको अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं, फिक पढ़ाते हैं, कुरान हदीस तो पढ़ाते ही कोई नहीं है। आप किस खाते में है कि वो कुरान हदीस पढ़ा के आपको निकाल रहे होते हैं। किस तरह मदारिस के बारे में झूठ बोल रहा है कि मदारिस में कुरान हदीस तो पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। अगर आप सिलेबस देखें मदारिस का, आपको मालूम हो जाएगा कि मदारिस के निसाब में कुरान हदीस शामिल है। सबसे पहले जो मदारिस में पहले दर्जे में पढ़ाया जाता है वो कुरान पाक का तर्जुमा तजवीद आपके सामने। तंजीमुल मदारिस का निसाब सानविया आमा यानी मैट्रिक साल अव्वल में क्या पढ़ाया जाता है, तर्जुमा पारा अव्वल ता इख्तिताम पारा सवम, 3 सिपारे पढ़े जाते हैं, साथ में तजवीद पढ़ी जाती है। उसके अलावा फिर अकायद और सर्फ नाव। दूसरे साल में चौथे सिपारे से लेकर 9वें सिपारे तक पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, तीसरे साल में सानविया खासा साल अव्वल में कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाया जाता है 10वें सिपारे से लेकर 18वें सिपारे तक। और हदीस की किताब कौन सी पढ़ाई जाती, आपके सामने रियादुस सालिहीन। कहते हैं कुरान हदीस नहीं पढ़ाया जाता। सानविया खासा साल दोवम FA कुरान मजीद तफसीर जलालैन 19वें सिपारे से लेकर 24वें सिपारे तक। और हदीस की किताब मुस्नद इमाम आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु। आलिया साल अव्वल BA उसमें तफसीर उसूल तफसीर पढ़ाया जाता है। जलालैन 25वें सिपारे से लेकर 30वें सिपारे तक। यहाँ कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। हदीस में मिशकात पढ़ाई जाती है। अगले साल मिशकात पढ़ाई जाती है। उससे आगे जो है वो दूसरी अहादीस की कुतुब पढ़ाई जाती है और दौरा हदीस कराया जाता है। कितना बड़ा इसने झूठ बोला कि मदारिस में कुरान हदीस की तालीम ही नहीं होती। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। आगे इसका झूठ नंबर 8 देखिए। किसी स्कूल की किताब में मिलेगा कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले, तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। जी दोस्तों आपने देखा और सुना किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है कि पहले ही साल में शुरू में जब बच्चा जाता है तो उसे बदमाश कुदूरी थमा देते हैं। ये इसका झूठ है। ये निसाब है आपके सामने कि पहले साल में कुदूरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कुदूरी पढ़ाई जाती है तीसरे साल में। पहला साल क्या है, साल अव्वल, उसमें फ़िक़्ह की किताब पढ़ाई जाती है कानून शरीयत। और दूसरे साल में पढ़ाई जाती है फ़िक़्ह की किताब नूरुल इज़ा। और तीसरे किताबें पढ़ाई जाती है मुख्तसर कुदूरी। इसने कहा कि पहले साल में उनको थमाई जाती है। हालांकि तीसरा साल कौन सा होता है, FA साल अव्वल। न्यूटन से आइंस्टाइन को डिग्री की लोड़ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंगी ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है, न्यूटन के ऊपर PhD होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ये इसका 9वां झूठ है। अपनी जहालत को छुपाने के लिए ये न्यूटन और आइंस्टाइन पर भी झूठ बोल रहा है कि न्यूटन 8वीं क्लास से भाग गया था। मेरे दोस्तों आप गूगल पर सर्च करें कि न्यूटन 8वीं क्लास से अगर भाग गया था तो उसने मास्टर की डिग्री कैसे ली। ये कहता है उनके पास डिग्रियां नहीं थी। और आइंस्टाइन ने PhD किया हुआ है। तो क्या PhD डिग्री नहीं है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री PhD की है, तो उन्होंने PhD की डिग्री की हुई है। और न्यूटन ने मास्टर की डिग्री की हुई है, तो ये कहता है कि उनके पास डिग्रियां कोई नहीं थी। इतना बड़ा झूठा और मक्कार आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले, तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके मुझे बता दें। आप ये ना निकले उन किताबों के अंदर तो आप मुझे पकड़ लें। अब इसका 10वां झूठ क्या है, वो ये है, वो कहता है कि इन किताबों में लिखा हुआ है कुत्ते से गधे से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ना निकले तो मुझे बता देना, मैं झूठा हूँ। जो भी देखें आप, ये बहुत बड़ा झूठा है। ये मुख्तसर कुदूरी आपके सामने है। सिर्फ इतना है कि वमन वाती बहीमतन, जिसने वती की जानवर से। और अहादीस में इब्न माजा में, तिरमिज़ी में, नसाई में, किताबुल हुदूद में अहादीस हैं
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने के जो जानवर से वती करे उसका हुक्म क्या है। तो ज़ाहिर मुहद्दिसीन फुक़हा जब किताबुल हुदूद का जिक्र करेंगे फ़िक़ह की किताबों में तो उन हदीस को लाएंगे, फिर हुक्म बयान करेंगे। तो अगर ये बात गलत है, सिर्फ इतनी बात लिखी इन्होंने, और ये नहीं है कि कुत्ते से गधे से पूरी कुदूरी आप पढ़ लें, ये झूठ बोला इसने, ये 10वां झूठ है इसका। और वो हदीस की शरह कर रहे हैं कि जो जानवर से वती करे उसका हुक्म क्या है। और इस बंदे ने किस अंदाज से बात की, अल-अमान वल हफीज़। इसका झूठ नंबर 11 देखिए। फ़िक़ह हनफ़ी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। दोस्तों ये भी इसका झूठ है कि फ़िक़ह हनफ़ी में लिखा हुआ है कि कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो नमाज जायज़ है, बच्चा उठा के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जायज़ नहीं होगी। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन अहादीस को सामने रख के उससे मसाइल अख़ज़ करते हैं। मसलन बुखारी शरीफ में हदीस है 516, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठा के नमाज पढ़ी। अब इससे मुहद्दिसीन और फुक़हा मसाइल अख़ज़ करते हैं कि आप अगर एक हाथ से कोई अमल करते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। जिस तरह आजकल के लिहाज से अगर आपका मोबाइल बज रहा है तो आप एक हाथ से मोबाइल को बंद कर लें ताकि दूसरे डिस्टर्ब न हो। इस तरह फ़र्ज़ी मसाइल भी बयान करते हैं कि अगर किसी ने कुत्ता उठा लिया या कुछ कुत्ते रखे गए हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम में अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ते रखने की इजाज़त दी है। अब अगर कोई मसला बन जाए, बंदे ने कुत्ते रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हुए कुत्ता उसको चिमट जाए या साथ में चारपाई पड़ी हुई है और कुत्ता उस पर चढ़ के इसके ऊपर आ जाए तो ये उठा ले, तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। फ़र्ज़ी मसाइल होते हैं, ये नहीं कि कुत्ता उठा के आपने नमाज पढ़नी है। और अहादीस में बुखारी मुस्लिम में अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे पर नमाज पढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे पर खड़े होकर नमाज पढ़ें, ये जवाज़ है। तो इसी तरह फ़र्ज़ी मसाइल बयान करते फ़ुक़हा कि अगर ऐसा मसला हो तो क्या आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी। तो फरमाते हैं कि अगर उसका मुंह बंधा हुआ है, चूँकि वो जानवर जिसका गोश्त नापाक है उसका लुआब क्या होगा, नापाक होगा। कुत्ते का गोश्त नापाक है, हराम है, तो अब उसका लुआब होगा नापाक। तो इस लिहाज से कुत्ता उठा के अगर उठा ले बंदा और उसको लुआब लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर कुत्ते का मुंह बंधा हुआ है तो बाज़ औक़ात कुत्ते का मुंह बांध लेते हैं ताकि किसी को जो है वो काट न ले। तो उस वजह से कहते हैं कि अगर ऐसा मसला हो तो नमाज हो जाएगी। ये फ़र्ज़ी मसाइल बयान करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो नमाज हो जाएगी। और आगे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया जायज़ है। इसने कहा कि फ़िक़ह हनफ़ी में लिखा हुआ है कि बच्चा उठा के नमाज पढ़ना नाजायज़ है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखिए नेमतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर है 342, अल्लामा कासानी के हवाले से लिखा है। बदाए सना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है 1418 में। नेमतुल बारी में लिखा है कि अल्लामा कासानी ने इस हदीस का जिक्र करके कहा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल मकरूह नहीं था क्योंकि आपको इसकी एहतियाज थी, वहाँ पर उस बच्ची की हिफाजत करने वाला और कोई नहीं था, या आप अपने इस फेल से इसका हुक्म शरई और जवाज बयान करना चाहते थे। और ये फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी बच्चे उठा के नमाज पढ़ना फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। इस तरह हमारे ज़माने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है, मकरूह नहीं है, नमाज हो जाएगी। और फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी इससे नमाज नहीं टूटेगी। इसने क्या कहा कि फ़िक़ह हनफ़ी में लिखा हुआ है कि नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। इसका झूठ नंबर 12 देखिए। और जो ये चैलेंज कर रहा है, हमने इसके चैलेंज का जवाब भी दिया हुआ है, देखिए वो क्या कह रहा है। दुश्मन के साथ है, शेख जुबैर साहब ने भी सही कहा, शेख अलबानी ने भी सही कहा, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाबी ने भी सही कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजाना रोजा भी रखता रहे, लेकिन अल्लाह से इस हुजूर में मिले, अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हो कि उसके दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो वो दोज़ख में जाएगा। आपकी नमाजें, दाढ़ियां, शलवारें ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। तो फिर कहते हैं नहीं हमारे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है। बुग़्ज़ नहीं है तो अहले बैत और हज़रत अली की शान में जब कोई हदीस शेयर करवाई जाती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आप चेक कर लें। मैं अगर कोई कहता है ना मैं ये ऐसी ही बातें कर रहा हूं, आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों की मस्जिद में अगर कोई व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा तो चार्ट पे आप ये बड़ी सी हदीस लिख के लगा दें, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो शाम तक वहां पे गड़बड़ना शुरू हो गई तो सर मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। लो चैलेंज है। दोस्तों कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि अहले सुन्नत की मसाजिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हदीस लगाई दी जाए तो शाम तक गड़बड़ होती है।
मैंने अपनी वीडियोस में इसके चैलेंज को कबूल किया है। 454 नंबर वीडियो है मेरी, 455 नंबर वीडियो है मेरी, उसमें मैंने दिखाया है। अपनी मस्जिद में मैंने ये हदीस लगाई है, अपने मुक्तदियों से मैंने पूछा है, वो खुश होते हैं। और आपके लिए एक और दलील ये है कि आप अहले सुन्नत की मसाजिद में जाएं, बाहर ही आपको नज़र आएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, यानी तमाम सहाबा के नाम आपको नज़र आएंगे। नौज़ बिल्लाह अगर बुग़्ज़ होता हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तो कभी नाम न लिखा जाता। अहले सुन्नत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मैंने दिखाया था और इसने जो चैलेंज किया था कि मैंने अपनी वीडियोस डिलीट कर देनी है, ये झूठा निकला। अब तक इसने कोई वीडियो डिलीट नहीं की और अहले सुन्नत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये इसका झूठ है और ये इसका फ्रॉड है और ये इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, मक्कार और झूठा है। इसी रमज़ान 1440 हिजरी में जियो न्यूज़ की एक ट्रांसमिशन के दौरान जाहिद चीपा भाई ने अपनी एंड्रॉयड ऐप का तफसीली इंट्रोडक्शन करवाया, जिसे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि अल्लाह ताला अपने दीन का काम किसी गैर आलिम से भी ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसी प्रोग्राम में एक बरेलवी आलिम दीन के एक जुमले ने बहुत रंजीदा कर दिया कि कुरान हकीम को उस्ताद के बगैर समझना ही नामुमकिन है। इस हवाले से रहनुमाई करें। रहनुमाई तो करते हैं। ये मैंने जब क्लिप देखा ना जी, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई। दुख तो मुझे होता है, उलमा जो कुछ करते हैं, लेकिन हैरानगी नहीं होती। हम तो पहले से ये रोना रो रहे हैं कि अगर आपको कोई यहूदी या ईसाई आके बात करे ना, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन, यही कहेंगे ना। और अगर एक दाढ़ी पगड़ी वाला खूबसूरत सी शक्ल बना के आपको कह दे कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, आप कहते हैं अल्लामा साहब ने फरमाया। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना इसका 13वां और 14वां झूठ। 13वां झूठ तो इसके सामने वाले ने बोला, इन खुद भी झूठा है और इसके सामने वाले भी झूठे ही बैठे हुए हैं। उसने सवाल किया जी, बरेलवी आलिम कहता है कि उस्ताद के बगैर कुरान पाक समझना ही नामुमकिन है। हालांकि अल्लामा कौकब नूरानी ने ऐसी बात ही नहीं की। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें उस वीडियो को। वो तो खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये बात है कि बाज़ औक़ात नुकसान होता है बगैर उस्ताद के पढ़ने के, तो आपको उस्ताद की रहनुमाई भी चाहिए होती। इतनी बात उन्होंने की है। और इसने 14वां झूठ क्या बोला जी, उलमा कहते हैं कि कुरान पाक खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। हालांकि वो आप लिंक मैं आपको दूंगा, आप देखिए उस वीडियो को। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब इसकी तफसील के क्या उस्ताद के बगैर पढ़ने से नुकसान होता है? होता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, पहले आप ये नंबर भी देखें अरबी में और उसको नोट भी कर लें। अब उसका तर्जमा देखिए। उर्वा कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि अगर मैं सफ़ा मरवा की सही न करूं तो मैं समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं। क्योंकि अब इस क्यों, उन्होंने पूछा क्यों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाया, उर्वा ने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर जो कोई हज या उम्रा करे और उनका तवाफ़ करे तो गुनाह नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 158। तो इस आयत से उन्होंने अखज़ किया कि सफ़ा मरवा पर सही करने में कोई हर्ज नहीं, अगर मैं ना करूँ तो मेरा हज उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने खुद पढ़ के इसका रिज़ल्ट निकाला। अब इसका नुकसान क्या है, खुद पढ़ के इसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं और हज उम्रा को नाकिस कर रहे हैं। देखें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या बयान फरमा रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अगर ये बात होती तो अल्लाह ताला यूँ फरमाता कि अगर कोई तवाफ़ न करे तो कुछ गुनाह नहीं। और ये बात तो अंसार के लोगों के बारे में उतरी है कि वो लोग जब लब्बैक पुकारते तो ज़माने जाहिलियत में मनात के नाम से लब्बैक पुकारा करते थे और कहते थे कि हमें सफ़ा और मरवा में सही करना दुरुस्त नहीं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज को आए तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, बस मुझे अपनी जान की कसम उसका, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मुझे अपनी जान की कसम उसका हज पूरा न होगा जो सफ़ा और मरवा की सही न करेगा। एक और रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि किसी का हज और उम्रा पूरा नहीं होता जब तक सफ़ा और मरवा का तवाफ़ यानी सही न करे। तो उर्वा ने अपनी तरफ से समझा था कि सही करने की ज़रूरत नहीं है, उस्ताद की ज़रूरत पड़ी। कहा फरमाया नहीं, जब तक सही नहीं करोगे तुम्हारा हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। तो ये नुकसान होता है बगैर उस्ताद के कुरान पाक को समझने का। बाज़ौक़ात तो अल्लामा साहब ने कहा बाज़ौक़ात नुकसान होता है, ठीक बात उन्होंने कही, लेकिन इसके सवाल करने वाले ने भी झूठ बोला और इसने भी झूठ बोला। अब आइए इसका 15वां झूठ। जूता उल्टा हो तो लोग समझते हैं कि ये गुनाह है और
कोई बदशुगनी या फौरन इसको सीधा करने भाग जाते हैं, इसमें कोई ये मंतक पुराने लोग समझते थे, अब तो इलियास कादरी साहब का बकायदा क्लिप आया कि अगर जूती उल्टी हो तो इसको सीधा नहीं करना चाहिए। जी, अगर चप्पल उल्टी हो जाए तो फिर क्या झगड़ा होता है? झगड़ा तो नहीं कहीं पड़ा, इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो अगर उल्टा पड़ा हो तो इसको सीधा कर देना चाहिए। मोहम्मद अली मिर्जा का 16वां झूठ। तो ये काजी अबू यूसुफ ने पहली दफा ये फतवा दिया था कि गन पॉइंट के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दिलवा दे, कोई बंदा किसी की बीवी को, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। इसके खिलाफ फिर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फिक्र हुसैन के साथ खड़े हुए, अल-मुतवफ़्फ़ा 179 हिजरी, काजी अबू यूसुफ के खिलाफ खड़े हुए। ये कहते नहीं इमामों को नहीं मानते, इमामों के सबसे बड़े दुश्मन तो आप लोग हो। इमाम मालिक को कोड़े आप लोगों ने लगवाए हैं, काजी अबू यूसुफ ने लगवाए हैं कोड़े, और इतने कोड़े लगवाए कि उनके ये शोल्डर टूट गए, यानी वो अपनी तहमत भी नहीं बांध सकते थे। जी दोस्तों, आपने देखा कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, और उस फतवे की वजह से इमाम मालिक को कोड़े पड़े, बल्कि इमाम अबू यूसुफ ने नऊज़ बिल्लाह इमाम मालिक को कोड़े मरवाए। यार कितना बड़ा ये बदबख्त झूठा आदमी है। इमाम अबू यूसुफ शागिर्द हैं इमाम मालिक के, तो शागिर्द अपने उस्ताद को कोड़े मरवाएगा? कितना बड़ा झूठा ये शख्स है। अब आप तारीख की किताबें उठाएं, तारीख आलम इस्लाम नईम सिद्दीकी की किताब है, प्रोफेसर नईम सिद्दीकी, उसकी 556 पढ़ लीजिए। हयात इमाम मालिक सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, सफ़ा नंबर 60 देखिए। तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, सफ़ा नंबर 517 उठाइए देखिए। और इस पर मैंने वीडियो बनाई तफसील के साथ, वीडियो है मेरे इस चैनल पर अली नवाज ऑनलाइन पर 62 नंबर वीडियो, उस पर मैंने तफसील इसकी बयान की है कि इमाम मालिक को कोड़े मारे थे जाफर ने, जो मदीने का गवर्नर था खलीफा मंसूर के ज़माने में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काजी बनते हारून रशीद के ज़माने में 170 हिजरी में, यानी इमाम अबू यूसुफ काजी बनते हैं 170 हिजरी में, और इमाम मालिक को कोड़े लगते हैं 147 हिजरी में। तो क्या आपकी अकल तस्लीम कर सकती है कि जो 22 साल बाद फतवा आना है, और उस फतवे की जद में 22 साल पहले इमाम मालिक को कोड़े लग रहे हैं? गौर कीजिए कि इमाम मालिक को कोड़े मारे हैं जाफर ने, जो गवर्नर था मदीने का, वो 147 हिजरी में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काजी बनते हैं 170 हिजरी में। 170 हिजरी के बाद वो फतवा देते हैं। तो ये किस तरह झूठ बोल रहा है? हाँ, इल्मी इख्तिलाफ है कि मुकर्रह की तलाक जिसको मजबूर किया जाए उसकी तलाक जायज़ है या जायज़ नहीं है। इमाम मालिक इस पर नाजायज़ का फतवा देते थे। तो जाफर जो गवर्नर था मदीने का, उसे लोगों ने बेत तोड़ दी। तो उसने आके कहा कि आप जो ये फतवा देते हैं कि जो जबरदस्ती तलाक किसी दिलवाए तो उसकी तलाक नहीं होगी, तो लोग इस तरफ आते हैं कि जो जबरदस्ती बैत लेगे उसकी बैत नहीं होगी, तो मेहरबानी फरमा के आप फतवा ये न दें। तो इमाम मालिक ने फरमाया नहीं, मैं फतवा दूंगा। तो इमाम मालिक को इस बात पर उसने कोड़े मरवाए कि आप फतवा न दें कि मेरी बैत टूट जाएगी। और जाफर ने, खलीफा मंसूर का भतीजा था, 147 हिजरी में इमाम मालिक को उसने कोड़े मरवाए उस जाफर ने। इमाम अबू यूसुफ काजी बनते 170 हिजरी में हारून रशीद के जमाने में। किस तरह झूठ बोला इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पर। और इमाम अबू यूसुफ बाद अब एक शागिर्द हैं, तो क्या वो उस्ताद को इस तरह कोड़े मरवाएंगे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार शख्स है ये। अब इसका झूठ नंबर 17 देखिए। आपकी लॉजिक पे जाए तो नमाजों की भी कज़ा होनी चाहिए थी, रोजा तो छोटी इबादत है। और ये फकी जो थी ना, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम हनीफा को दी थी एक दफ़ा। इमाम हनीफा जो थे ना, वो कई मामलात में इज्तिहाद करते थे ना, तो इमाम जाफर के को जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने ये एग्जाम्पल सामने रखी कि बताओ पेशाब ज़्यादा निट्स है या मनी, और फिर ये वाला मसला डिस्कस किया औरतों वाला। तो उन्होंने फिर कहा बेटा मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि शरीयत में नकल पहले है और अकल बाद। अकल पे जाएं तो जिन औरतों के जो पीरियड्स में, अयामे हैज में छूटे हुए जो नमाजें हैं वो भी पढ़ी जाएं। जी दोस्तों, आपने देखा इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह झूठी बात बयान कर रहा है। पहले तो इमाम अबू यूसुफ पर इसने झूठ बांधा, अब ये इमाम आजम पर झूठ बांध रहा है। जो वाकया बयान कर रहा है वो झूठा बयान कर रहा है। ये वाकया इसके उलट है। मैं आपको किताब बता रहा हूँ, मुहक्किक अबू ज़ुहरा, उनकी किताब है अबू हनीफा,
सफ़ा नंबर 71 पर, और इब्न हजर मक्की की किताब है अल खैरातुल हिसान सफ़ा नंबर 76, और डॉक्टर ताल कादिर साहब की किताब है उर्दू में इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु इमामुल अइम्मा फिल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 842 पढ़ सकते हैं कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई इमाम मोहम्मद बाकिर से। इसने कहा इमाम जाफर सादिक से। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात नहीं, ये इसका 17वां झूठ है जो इमाम आजम रदियल्लाहु तआला पर इसने झूठ बांधा है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला से मुलाकात हुई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, तो इमाम बाकिर रदियल्लाहु तआला कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप अकल पर चलते हैं, आप नकल की बात नहीं करते। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आइए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। इस पर मेरी तफसील के साथ वीडियो है, वीडियो नंबर है 442, जिसमें मैंने तफसील के साथ इस वाक़े को बयान किया है जो इसने झूठ बांधा है। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि इमाम आजम रदियल्लाहु तआला की मुलाकात हुई है इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मदीना में। तो इमाम बाकिर रदियल्लाहु तआला ने कहा कि मैंने सुना है कि आप अकल पर चलते हैं और नकल की बात नहीं करते, यानी क्यास पर चलते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आइए, आप हमारे बड़े हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, आप बैठे, मैं अर्ज करता हूँ। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आप मुझे बताइए कि नमाज की फजीलत ज्यादा है या रोजे की। इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला ने फरमाया कि नमाज की ज्यादा फजीलत है रोजे से। तो हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह फरमाया कि अगर मैं अकल पर चलता तो मैं हुक्म ये देता कि जिन औरतों को हैज आता है तो वो नमाज की कज़ा करें हैज के बाद, ना कि रोज़ों की। लेकिन दीन हमें ये सिखाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ये है कि हैज की हालत में जो नमाजें कज़ा हुई हैं, हैज के बाद पाकी की हालत में नमाजें तो नहीं कज़ा करेंगी, लेकिन रोज़े कज़ा हुए तो वो लौटाएंगी, रोज़े कज़ा करेंगी। तो ये कहता है मैं ये फतवा देता हूँ कि रोज़े कज़ा करेंगी, नमाजें कज़ा नहीं करेंगी। अगर मैं अकल पर चलता तो मैं इस तरह फतवा न देता, बल्कि मैं ये फतवा देता कि नमाजें कज़ा करें, क्योंकि नमाज की फजीलत ज्यादा है। तो इमाम मोहम्मद बाकिर उठे और माथा चूमा आपका। इस बंदे ने झूठ बांधा, और आगे इस बात को, झूठ को किस तरह साबित कर रहा है ये भी जरा देखिए। और जो लोग नकल पे नहीं चलते रहे उन्होंने ये किया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अम्मा आयशा के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि औरतें मखसूस अय्याम में जो नमाजें रह जाती हैं वो पढ़ेंगी। तो आपने फरमाया तू मुझे हुरूरिया में से लगता है। हुरूरिया खवारिज को कहा जाता है, ये एक गांव था जहां से ये खवारिज का फितना उठा था। तो आपने मुझे तू हुरूरिया में से लगता है। खवारिज जो है ना वो औरतों को नमाजें भी पढ़वाते थे उन अयाम की छूटी हुई। तो अम्मा आयशा कहने लगी कि हम नबी की बीवी हैं, नबी अलैहिस्सलाम हमें अयाम हैज में छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा का हुक्म देते थे, नमाजों का नहीं। अब फर्स्ट हैंड नॉलेज तो यही हो सकता है ना कि अम्मा आयशा खुद बता दें, इससे बड़ा तो कोई दीन नहीं सिखा सकता ना कि नबी की बीवी सिखा रही है। लेकिन नबी की बीवी जिंदा है तब भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि औरतों की नमाजें जो छूटी हुई हैं अयाम हैज के अंदर, मखसूस अयाम के अंदर, उनकी उन्होंने कज़ा करनी है। सर उस जमाने में भी गुमराहियां फैली हुई थी, तो आज अगर फैल जाए तो परेशान ना हुआ करें। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसने एक झूठ ये बांधा इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पर, जो मुलाकात कहता है इमाम जाफर से हुई, बल्कि ये मुलाकात इमाम मोहम्मद बाकिर से हुई है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला से भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो अलग वाकयात हैं। अब इसने जो ये हदीस बयान की है, इसमें इसने 3 झूठ बांधे हैं कि वो खवारिज इस तरह उनका कीदा था, ये गुमराही थी, वो एक बंदा आया। ये तीनों झूठ हैं। यानी अब ये झूठ नंबर 18, 19 और 20। अब देखिए ये हदीस आपके सामने है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है 761, 62 और 63 आप देख सकते हैं, जिसमें हजरत मुआज़ा रदियल्लाहु तआला सवाल करती है हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला से। ये कोई खवारिज नहीं, ये बंदी है, बंदा भी नहीं है। वही जिसने कहा ये बंदा था, एक खारजी आया। हालांकि ये मुआज़ा हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला के शागिर्दा हैं। वो पूछती हैं कि क्या वजह है, सवाल करती हैं, और इसने कहा कि गुमराही फैली हुई थी। ये 3 झूठ इसने एक ही मिनट में इसने बोल दिए हैं। हज़रत मुआज़ा रदियल्लाहु तआला कहती हैं कि मैंने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला से कि क्या वजह है कि जब औरत को हैज आता है उसके बाद वो नमाजें कज़ा तो नहीं करती, रोजे कज़ा करती हैं। तो इस पर हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला फरमाया क्या तो हुर्रिया तो नहीं है? उनका नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। ये हदीस नंबर है 763 और इसका दूसरा नंबर है 335, उसको आप देख सकते हैं। वो कहती नहीं, वलाकिन्नी असल में सवाल कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
کہ नमाजें कज़ा नहीं की जाती हैं बल्कि रोजे कज़ा किए जाते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती, इस तरह हमें हुक्म हुआ था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यही हुक्म दिया है कि नमाजें कज़ा नहीं करनी, और इन हालात में रोजे कज़ा हो जाएं तो हम उनको दोबारा लौटाएंगे, रोजों की कज़ा होगी। तो एक मिनट में इसने 3 झूठ बांधे हैं। 16वां झूठ भी देखा आपने, 17वां भी, और ये 18वां, 19वां, 20वां, 20 झूठ अब हो गया। देखिए 21वां झूठ इसका। फिर मैंने अर्ज किया कि आपने सुन्नी शिया फिरका वारियत के इस दौर में जो इत्तेहाद उम्मत का अलम बुलंद किया है और मोहब्बत अहले बैत का बेड़ा उठाया, तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? कहते मैंने वहां जब मैंने उनको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि अहले बैत की शान तो बिल्कुल नापैद हो चुकी है अहले सुन्नत के। यहाँ गुलदस्ता अहले बैत, और उसमें उन्होंने अहले बैत में सिर्फ उन्होंने शुरू के अहले बैत की बात नहीं की है, सैयदना अली हसन हुसैन, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, मूसा काजिम, इमाम अली रजा, ये जो आइम्मा हैं बाद के, उनके भी हालात जिंदगी। और उन्होंने कहा जी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने 450 अहले सुन्नत की किताबें पढ़ी हैं, तो किसी जगह 2 सतरें, किसी जगह 3 सतरें मिली हैं बाकी के आइम्मा के बारे में। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना 21वां झूठ इसका। ये बात बयान कर रहा है, मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की कि जब उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप अहले बैत का बहुत जिक्र करते हैं, तो कहने लगे बेटा अहले बैत का जिक्र जो अहले सुन्नत में नापैद हो गया है। मैंने 450, 450 किताबें पढ़ी, जो नीचे वाले इमाम हैं उनका कोई जिक्र नहीं मिलता, कहीं 2 सत्रों में बात है, कहीं 3 सत्रों में। ये सारा झूठ है। ये नाम मौलाना तारिक जमील साहब का ले रहा है, ये खुद झूठ बोल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अहले सुन्नत में तमाम इमामों का जिक्र है अदब एहतराम के साथ, उनकी फजाइल, बल्कि किताबें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला पर पूरी किताब है मुफ्ती एजाज साहब की, 304 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब। और इस तरह इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला पर पूरी किताब है उनकी जिंदगी पर, गुलाम रसूल जमाती की 496 सफ़ात पर, ये जाविया पब्लिशर्स ने छापी है। इसी तरह इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह तआला पर ये एजाज साहब की किताब, मुफ्ती एजाज साहब की 256 सफ़ात पर, और 12 इमामों पर किताब है मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की, 12 इमाम 239 सफ़ात पर किताब मुश्तमिल है। इसने झूठ बांधा कि जी कहीं 2 सतरें, कहीं 3 सतरें, तो 2 सतरें, 3 सतरें, 12 इमामों का अगर जिक्र हो तो कितनी बनती है आप बताएं? 24-25 सफ़ात बनते हैं। अब 239 सफ़ात पर किताब मुश्तमिल है, 12 इमाम। इसके अलावा अहले सुन्नत की कसीर तादाद में कुतुब मिलती हैं, उलमा लिखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान में लिखी है, इमाम हसन हुसैन की। आप मार्फत लाइब्रेरी पे जाएं और वहां इसको रिसर्च करें, आपको कसीर तादाद में किताबें मिलेंगी। ये था इसका 21वां झूठ। अब आइए इसका 22वां झूठ। और यही वजह है कि 1994 में जब मैंने पहली दफा जाल हक पढ़ी ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की, तो वो हर जगह मुखालफीन यानी देवबंदियों के दलाइल से भी साबित करते थे अपने फिरके को, किताबों सुनने से नहीं, उनके। तो मैं तहकीक से रुक गया। मैंने कहा देवबंदी बरेलवियों के पुराने बुजुर्ग तो एक जैसे ही थे, यानी बरेलवी नुमा ही थे। किताबों सुन्नत पढ़े बगैर मैंने तहकीक रोक दी। ये दोस्तों आपने सुना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह किस तरह झूठ बांध रहा है, जो अपने फिरके के बारे में दलाइल देते हैं तो वहाबियों को दलाइल देते हैं, देवबंदियों को दलाइल देते हैं, कुरान और सुन्नत से दलाइल नहीं देते। कितना बड़ा झूठ। ये किताब मेरे सामने है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। जिस भाई को चाहिए इस नंबर पर किताब PDF मंगवाए, जाल हक। सबसे पहले मुफ्ती साहब क्या करते हैं, कुरान पाक की आयत लाते हैं, उसके बाद अहादीस लाते हैं, कुरान और सुन्नत से अपने मसाइल को हल करते हैं, अपने अकीदे को बताते हैं कुरान और सुन्नत से। इस बंदे ने बहुत बड़ा झूठ बांधा है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह पर। जिस भाई को यकीन ना आए वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे, मैं उसको ये किताब भेजूंगा जाल हक। वो देखेगा कि मिर्जा जेलमी कितना झूठा मक्कार है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी जाल हक, सबसे पहले कुरान लाते हैं, आयात लाते हैं बहुत सारी, उसके बाद अहादीस लाते हैं, उसके बाद फिर तफसीली बयान करते हैं। इस बंदे ने मुफ्ती साहब पर बहुत बड़ा बोहतान और झूठ बांधा है। झूठ नंबर 23। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये इसका नारा है कि ना मैं बाबी ना मैं वाबी, मैं मुस्लिम किताबी। कितना बड़ा झूठा है। अगर तू बाबी नहीं है तो सामने बाबों की किताबें रखी हुई हैं, ये बाबों की किताबें हैं। इमाम तिरमिजी की किताब आपने रखी हुई है। इमाम तिरमिजी को कहता है ये बाबे हैं, अपनी वीडियोस में कहता है इन बाबों को हमने नहीं देखना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं हमने बाबों के पीछे नहीं जाना, मैंने इस पर वीडियोस बनाई है।
کہ عمران خان مرزا کا کیڑا نکالیں، اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ یہ مرزا جیلمی امام مالک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیثیں چھپاتے تھے. اس پر میری ویڈیو ہے. تو یہ بابوں کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی، کہتا میں باب بھی نہیں ہوں. کتنا بڑا جھوٹا ہے. اگر تو سچا ان کتابوں کو ہٹا دے. ان بابوں نے تو کتابیں لکھی ہیں دوستو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار فراڈیا شخص ہے یہ. کتابیں سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں. بابوں کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. اگلا جھوٹ اس کا دیکھیے. یہ آپ جنید جمشید اور باقی لوگوں کے کلثوم نواز کے جنازے دیکھ رہے ہیں نا سر، یہ آج کے جنازے ہیں. مودودی صاحب کی ذرا ویڈیو دیکھیں جنازے کی. محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. میں جناح صاحب کا نام ذرا احتراماً اس حوالے سے لے رہا ہوں، ادروائز ان سے بھی بڑا جنازہ ہوا ہے مودودی صاحب کا. دوستو آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں جنازہ جو ہے مولانا مودودی کا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. اس پر میری ویڈیو ہے 438 نمبر. میں نے دکھایا ہے کہ سب سے بڑا جنازہ مولانا مودودی کا ہے یا ممتاز قادری کا ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے. سب سے بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں ممتاز قادری کا ہے. یہ بندہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. اگلا جھوٹ دیکھیے اس کا. جھوٹ نمبر 25 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے. میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو. تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی. دوستو یہ ہے اس کا جھوٹ نمبر 25 کہ یہ جو حدیث ہے مجھ سے پہلے کسی سنی عالم نے بیان کی ہو، یہاں ٹاپک بنا کے لکھی ہو. آپ کو علم ہوگا، آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی. ہم بچپن سے یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ فاتح خیبر کون، اور اس پر میری ویڈیو ہے، اسی کو میں نے جواب دیا ہے. ویڈیو نمبر 298 جس میں میں نے ان کتابوں کو دکھایا ہے، سنی علماء کی کتابیں، اور وہ پیجز دکھائے ہیں کہ جس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اور ہیڈنگ بنائی ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہم بچپن سے یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں، اور آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی. کمنٹس میں ضرور لکھیے کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے اور یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اہل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں. یہ رافضی ہے اور رافضی کو خوش کرنے کے لیے ایسے جھوٹ بول رہا ہے کہ اہل سنت نے کبھی یہ بیان ہی نہیں کی. ہم نے سینکڑوں مرتبہ یہ سنی ہے اور الحمدللہ کئی مرتبہ ہم نے ممبر پر سنائی ہے عوام کو. یہ جھوٹا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اور فراڈی شخص ہے. اب آئیے سے آگے بڑھتے ہیں. اس نے قرآن پر کس طرح جھوٹ بولا ہے دیکھیے. جھوٹ نمبر اس کا 26 کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. جی دوستو آپ نے اس کا ترجمہ سنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی تراجمے آپ اٹھا کے دیکھیں ان کا یہی ترجمہ ہوگا. کسی ایک مترجم نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا خدا غائب ہوتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے خدا غائب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس طرح کا عقیدہ مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ قرآن پاک پر جھوٹ بول رہا ہے. قرآن پاک کا کس طرح غلط ترجمہ کر رہا ہے. سوچئے کتنا بڑا جھوٹا ہے. کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے. ٹوٹانی سوری، وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کہ بکر میں مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا. دیوبندی رضوان وہ جناب آگ میں سانو پتا ہے. میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کی ہوئی ہے. کتنے سال ہو گئے نا غائب ہو گئے نا ٹوٹانی صاحب. ٹوٹانی صاحب کو حسین الدین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd یا 3rd ایئر میں پڑھتا تھا. ہم پوری بس انجینئرنگ یونیورسٹی سے لے کے آئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ سیلم گیر آئے، میں 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا. یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے
दूसरा वर्जन भी लें, वो जो रिजवान, डॉक्टर रिजवान था, एक साढ़े डॉक्टर रिजवान साहब बैठे हैं ना, वो डॉक्टर रिजवान, वो कहता है जी ये टोटानी बंदिया ने बदमाशा ने फड़ के मनु आग सुटिया, वो कहता है मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया। इतना बड़ा झूठा है, 1 मिनट में इसने 4 झूठ बोले हैं। आप हैरान होंगे कि 1 मिनट में इसने 4 झूठ बोले हैं कि मोहम्मद पनाह टोटानी से जिस बंदे का मुनाजरा हुआ, मुबाहला हुआ, उसका नाम था रिजवान, 1 नंबर झूठ। वो डॉक्टर था, ये दूसरा झूठ। मोहम्मद पनाह टोटानी के लोगों ने उसको ज़बरदस्ती आग में डाला था, ये तीसरा झूठ। और इसके सिर्फ अकेले रावी है मोहम्मद पनाह टोटानी, ये चौथा झूठ। 4 झूठ इसने 1 मिनट में बोले हैं। बात यह है कि 1997 में मोहम्मद पनाह टोटानी और मोहम्मद हारून, जो दोनों ड्राइवर थे ट्रैक्टर के, आपस में गुफ्तगू हुई। बात तूल पकड़ गई कि अगर आपका अकीदा सच्चा है या मेरा अकीदा सच्चा है, दोनों आग में जाते हैं। जो बंदा सच्चा होगा, जिसका अकीदा सच्चा होगा, वो सही सलामत आग से निकलेगा, दूसरा झुलस जाएगा। ऐसा ही हुआ। तो मोहम्मद पनाह टोटानी के सामने जो आदमी था उसका नाम था हारून, इसने कहा रिजवान। वो डॉक्टर नहीं था, वो ड्राइवर था, दूसरा इसका झूठ। तीसरा, आपस में मशवरा करके ये बात तय हुई थी और आग में कूदे। मोहम्मद पनाह टोटानी बच गया और पूरी दुनिया के अखबारात ने इसको जगह दी, बताया। उस वक्त मैं पढ़ता था कराची में 1997 में। उस दिन हमने वो अखबार देखा, हमने नारे लगाए, फिर नातखानी की। इसने चौथा झूठ बोला कि वो खुद एक रावी है। अगर वो खुद एक रावी है तो आप इतने कच्चे थे कि यूनिवर्सिटी से पूरी बस लेके आप उनकी ज़ियारत के लिए आए। पूरी दुनिया उनकी ज़ियारत के लिए आ रही थी, लोग जा रहे थे, तो एक रावी है तो सारा उसको उस वक्त समझ रहे थे। अब वो झूठा हो गया। दोस्तों, ये मुख्तसर सा वाक़या था मोहम्मद पनाह टोटानी का और हारून का। मोहम्मद पनाह टोटानी आग से सही सलामत निकला था और हारून झुलस गया था। आले सुन्नत की ये सच्चाई का एक बहुत बड़ा वाक़या था। इसने इस वाक़े पर 4 झूठ बोले हैं। उसका नाम कहा रिजवान है, रिजवान नहीं था, उसका नाम हारून था। इसने कहा वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर नहीं था, वो ड्राइवर था। इसने कहा मोहम्मद पनाह टोटानी के लोगों ने ज़बरदस्ती उसको डाला था, ये गलत है। आपस में मुशावरत के तौर पर ये बात हुई थी। और चौथी बात उसने कहा ये खुद एक रावी है, हालांकि पूरी दुनिया जानती है। उस इलाके वालों से आप राब्ता करें। कमेंट्स में लाड़काना वो जगह है, ज़िला लाड़काना, और साथ में गाँव वार है, ये उस गाँव का वाक़या है। इंशाल्लाह कमेंट्स में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग भी बताएंगे आपको कि वाक़या सच्चा है और मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। 5 घंटे की गुफ्तगू थी सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पे, मेरे 100 सवालात, वरना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कुरान हकीम से अगर मैं आयत कोट करूं, नमाज के करीब मत जाओ, बस इतनी आयत ले लूं सूरत निसा की और मैं कहूं कुरान में ही लिखा है नाउज़ बिल्लाह, आगे ये ना लिखा हो पढ़ूं कि जब तुम नशे की हालत में हो तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा इसका झूठ नंबर 31। ये कह रहा है कि मेरी बात जो है मुकम्मल नहीं दिखाते, जुमला काट काट के दिखाते हैं। कुरान पाक की आयत पढ़ के भी इसने सुनाई। दोस्तों, कुरान पाक की में जो है कि ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना आओ नशे की हालत में, एक आयत मुकम्मल हो गई। अब पूरा कुरान पाक पढ़ के तो किसी को नहीं सुनाया जाएगा ना, एक आयत पढ़ के सुनाई जाएगी। इसी तरह एक जुमला मुकम्मल हो जाता है। जब ये कहता है कि हाफिज़ कुरान की फजीलत कोई नहीं कुरान पाक में, तो जुमला मुकम्मल हो गया। और ये भी कहता है कि मेरा चैलेंज है कि कोई हदीस नहीं है। इसने झूठ बोला कि जी हमारी बात मुकम्मल नहीं दिखाते। अब ये 5-5 घंटे ये तकरीर करता है, तो 5 घंटे तो हम नहीं दिखा सकते। हम इसका एक पूरा जुमला दिखाएंगे आपको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये इसका 31वां झूठ है कि हमारी बात मुकम्मल नहीं दिखाते। अब आइए इसका 30वां झूठ हाफिज़ कुरान के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसकी आगे तफसीर भी बयान करूंगा। तिरमिज़ी में 2914, सुनन नबी दाऊद में 1464। ये भी हाफिज़ कुरान के लिए पेश की जाती है, लेकिन जरा इसके अल्फाज भी जरा आप सुन लें। अरबी में अल्फाज है युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत वाले दिन कुरान वाले से कहा जाएगा। इसमें हाफिज़ कुरान के लफ्ज़ ही कहीं नहीं मौजूद है। साहिब कुरान, साहिब कुरान कौन होगा? जो ऊपर वाली हदीस में आप सुन चुके, जिसने कुरान पढ़ा, सिखाया और उसके मुताबिक अमल किया। हाफिज़ कुरान, मेरा चैलेंज है कि किसी हदीस में हाफिज़ कुरान के लफ्ज़ ही कोई नहीं मौजूद है। साहिब कुरान। जी दोस्तों, आपने देखा इसने चैलेंज किया कि हाफिज़ कुरान की फजीलत के बारे में कोई एक हदीस भी नहीं है। आइए बुखारी शरीफ को देखते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4937। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
मसलुल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा हाफ़िज़ुन लहू, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और वो उसका हाफिज भी है, कुरान पाक का हाफिज भी है। मा सफरतुल किरामिल बररा, मुकर्रम और नेक लिखने वाले फरिश्तों जैसी है, यानी उसकी मिसाल मुकर्रम और नेक लिखने वाले फरिश्तों जैसी है। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाफिज कुरान की फजीलत बयान फरमाई और फरमाया जो शख्स कुरान मजीद बार बार पढ़ता है फिर भी उसके लिए दुश्वार है तो उसे दुगना सवाब मिलेगा। तो यहाँ हाफिज कुरान की फजीलत अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमाई कि उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और वो उसका हाफिज भी है, मुकर्रम और नेक लिखने वाले फरिश्तों जैसी है उसकी मिसाल। तो इसने चैलेंज किया, अब उसका चैलेंज का जवाब भी है और जुमला भी मुकम्मल है। ये था इसका झूठ नंबर 32। आइए देखते हैं इसका झूठ नंबर 33। विठा करने वाली चिड़िया जेडी फीका हनफी देता है, अगर हमारे नजदीक तो नहीं लेकिन इनके नजदीक अगर कपड़ों के ऊपर ये बीट कर दे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। दोस्तों ये भी इसका झूठ है। फ़िक़्ह हनफी में ये हरगिज़ नहीं है कि चिड़िया आकर बीट कर जाए तो कपड़ा नापाक होगा, ये नहीं है। बल्कि ये कि कबूतर, चिड़िया, इस तरह के जो उड़ते हुए जानवर हैं, हलाल जानवर हैं, वो अगर बीट कर जाएं तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर इसका 391, मसला नंबर 18। जो परिंद हलाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर ऊंचे उड़ने वाले हैं, मीना, मुर्गाबी, काज, इनकी बीट पाक है। यानी कबूतर ऊंचा उड़ रहा है तो उसकी बीट क्या है? पाक है। तो चिड़िया भी ऊंचा उड़ रही है और हलाल है तो उसकी बीट भी क्या है? पाक है। मज़ीद चिड़िया का लफ्ज़ भी आप देखें कि अगर चिड़िया की बीट पानी पर चली जाए तो पानी नापाक नहीं होता, इसी तरह कपड़ा भी नापाक नहीं होता। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 335 आपके सामने है। कुएं का बयान मसला नंबर 3। मैंगनियाँ और गोबर और लीद अगरचे नापाक हैं मगर कुएं में गिर जाएं तो बवजह ज़रूरत इनका कलील माफ़ रखा गया है। पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा। और उड़ने वाले हलाल जानवर, वहाँ भी कहा था उड़ने वाले परिंद, अब यह उड़ने वाले हलाल जानवर परिंद शामिल है। कबूतर, चिड़िया की बीट या शिकारी परिंद, चील, शिकरा, बाज की बीट गिर जाए तो नापाक न होगा, वो पानी नापाक नहीं होगा, पानी भी नापाक नहीं होगा। और कपड़े पर बीट गिर जाए चिड़िया कबूतर की तो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। मुबाहला गैर नबी के लिए करना हराम है, ये सिर्फ नबियों की खुसूसियत है। या वो शख्स पे नबी होने का दावा करे कि मैंने हक वाज़ेह कर दिया। ये इसका झूठ नंबर 34 है कि मुबाहला नबी के अलावा किसी और को करना हराम है या वो नबूवत का दावा करे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आइए मैं आपको दिखाता हूँ नसाई शरीफ 3552। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैं मुबाहला करने को तैयार हूँ इस बात पर कि हमल वालों की इद्दत वज़े हमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं मुबाहला करने को तैयार हूँ कि जो हमल वाली औरत है जब उसका बच्चा पैदा होगा तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, इस बात पर मैं मुबाहला करने को तैयार हूँ। तो अगर मुबाहला नबी के अलावा किसी और के लिए हराम होता तो क्या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये दावा करते कि मुबाहला करने को तैयार हूँ? तो इसने झूठ बोला आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। ये सिर्फ आपकी खुसूसियत है, हालांकि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कह रहे हैं कि हम मुबाहला करने को तैयार हैं। अब आइए देखिए इसका झूठ नंबर 35। और हुजूर ने भी खुद कहा कि चूंकि मेरे पास खुद इल्म गैब था तो मैं आप यार मनु तो पता है। एक अनीफ कुरैशी साहब भी कहते हैं जी वो वहां पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है आपको दिखाया जा रहा है, ये तो आपके घर के अंदर जो हुआ है वो आज़म ने कहा कि मुझे मेरे रब ने बताया। ये अकीदा अगर रखें रब ने बताया तो पता चल यही रखते हैं ना? नहीं, वो कहते हैं इनका अकीदा है कि नबी के पास एक कॉम्पिटेंसी है, एक महारत आ गई है, वो जब चाहे जो गैब चाहे मालूम कर लेते हैं खुद ब खुद। यही अकीदा इनसे पूछ ले, खुद ब खुद यही अकीदा इनसे पूछ ले। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ात खुद इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह के बताए बगैर। ये झूठ है अहले सुन्नत पर। अहले सुन्नत के किसी आलिम से आप पूछ लें कि आपका इल्म गैब के बारे में क्या अकीदा है तो आपको ये बताएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है, इल्म गैब अताई है। अल्लाह तबारक व तआला के पास इल्म गैब ज़ाती है और अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अताई दी, अता फरमाया है।
تو کوئی بھی سنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتائے بغیر جانتے ہیں. یہ اہل سنت پہ اس نے جھوٹ باندھا ہے. آپ کسی عالم سے آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے. اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا. دوستو اس کا جھوٹ نمبر یہ 36 ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کرایا تھا. حنفی جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. احناف کی کتابوں کو آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. آپ ہدایہ کو اٹھائیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ بلال نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرمایا ھذا یا بلال اجعلوا فی اذانک ما احسن، یہ کتنا اچھا کلام ہے یا بلال، اس کو اذان میں خاص طور پر فجر کی اذان میں داخل کر دے. یعنی صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہی الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان میں داخل ہوا ہے. تو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کو لے کے اپنی بدعتوں کو ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بار شریعت آپ اٹھائیں، جلد 1 صفحہ نمبر 470 پر لکھا ہوا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ مستحب ہے، بدعت نہیں ہے. نور العزا اٹھائیں، قدوری اٹھائیں، سب کہتے ہیں کہ یہ مستحب سنت ہے. اس نے جھوٹ بولا کہ الصلاۃ خیر من النوم کی آڑ میں سنی بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں حضرت عمر نے بدعت جاری کی تھی تو ہم بھی بدعتیں جاری کرتے ہیں، تو حضرت عمر کو تختہ مشق بنا دیا. کتنا بڑا جھوٹا ہے. آپ میرات المراجی پڑھیے، اسی حدیث کے تحت 652 نمبر حدیث کے نیچے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اذان فجر میں اس کو داخل کر لو. سنی حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان فجر میں خود اس کو داخل فرمایا تھا. کس طرح صاف صریح جھوٹ بول رہا ہے. صنعت کے ساتھ ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اللہ سے اس حضور میں ملے، اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو وہ دوزخ میں جائے گا. آپ کی نمازیں، داڑیاں، شلواریں یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے. بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ چیک کر لیں. میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسی ہی باتیں کر رہا ہوں، آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو شام تک وہاں پہ گڑبڑنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. لو چیلنج ہے. دوستو آپ نے اس کی گفتگو سنی، کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اگر آپ کو بغض نہیں ہے تو یہ حدیث سے لگا لیتے ہیں احناف کی سنیوں کی مسجد میں شام تک گڑبڑ ہو جائے گی. میں نے ویڈیو نمبر 456 455 اس پر بنائی ہے. میں نے کہا میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں نے حدیث لکھ کے مسجد میں لگا دی اور 456 اور 55 میں نے دکھایا ہے اپنے مقتدیوں کو بھی اس میں کہ آپ کو اس سے تکلیف تو نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے؟ کہتے بالکل ہمیں خوشی ہوتی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جو مولا علی کا نام سن کے اسے تکلیف ہو، وہ منافق ہے. تو اس نے کتنا جھوٹ بولا. دوسری دلیل کیا ہے دیکھیں، اہل سنت کی مساجد کو آپ دیکھیں باہر ہی لکھا ہوتا ہے، یعنی جو مین جو مسجد کا دروازہ ہے یا اسے آگے آپ جائیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوتا ہے. واضح دلیل ہے کہ اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے ویڈیوز بنائی اس پر 456 455 آپ دیکھ سکتے ہیں. سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں.
انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا. اللہ مان والحفیظ، کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے محمد بن سیرین پر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن سنوں گا تو میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. جن کا عقیدہ یہ کہ قرآن سننے سے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو گئے. اور لعنت بھی بھیجی اس نے محمد بن سیرین جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں. اس کے بارے میں کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ کتاب میرے سامنے ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، سنن دارمی جلد 1 حدیث نمبر 411. کیا فرماتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان بندوں کی باتیں کیوں نہیں سنی، قرآن ان سے کیوں نہیں سنا، حدیث ان سے کیوں نہیں سنی، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں، قرآن پاک پڑھ کے اس میں تعریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے. اتنی بات، قرآن پاک پڑھ کے اس میں تعریف کریں گے، آیت پڑھیں گے، معنی مفہوم بدلیں گے، اس کو کہتے ہیں تعریف کرنا. قرآن پاک سننے سے نہیں، قرآن پاک پڑھ کے اس میں جو تعریف کریں گے، معنی مفہوم بدلیں گے، وہ کہیں میرے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا. آج اگر قادیانی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ کہیں گے وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں پر لعنت ہے، میں نے قرآن نہیں سنا تم سے. آپ کا جواب یہی ہوگا. اس وقت بھی اس طرح کے لوگ تھے متکلمون فلاسفہ، جن کے بارے میں امام دارمی نے پورا باب باندھا ہے کہ اہل ہوس، بدعتی اور متکلمین سے بچنے کا بیان. تو بہت سارے محدثین فقہا کہتے ہیں کہ ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے، تو اس میں اس حدیث کو بھی لائے ہیں. اس بندے نے کتنا بڑا جھوٹ بولا محمد بن سیرین پر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اس لیے ان سے نہیں سنتا کہ قرآن پڑھ کے اس میں جو معنی مفہوم اس کو بدلیں گے، تو میں نے اس لیے ان سے قرآن نہیں سنا. اور اس نے کیا کہا کہ قرآن میں نے اس لیے نہیں سنا کہ قرآن سننے کا میرا عقیدہ خراب ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جو جلیل القدر تابعین پر اس طرح جھوٹ باندھتا ہے. فرے کے طرفات میں نہ دیکھیں، چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. اس کتاب میں بھی ہم نے ان کی ایک لنگوٹی پکڑ لی ہے. وہ کتاب انہوں نے ہی لکھوائی ہوئی ہے محمد وہاب صاحب کو بدنام کرنے کے لیے. پتہ کیوں؟ اس کتاب میں سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. غلطی یہ ہوئی ہے، وہ انگریز ایجنٹ کہتا ہے جی میں عراق میں ایک وہ کمپیریزن کروا رہا ہے کہ ایک حنفی عالم کتنا اچھا تھا اور ایک طرف یہ تھا شرابی اور عورتوں کا عاشق، اور یہ وہ کہانی کرائی نا. اس سے غلطی یہ ہو گئی، اور یہ کتاب انہوں نے یہود و نصارہ سے مل کے لکھوائی ہے، اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی، کیونکہ اس میں حنفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، عراق میں حنفی عالم کو ملا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا. سر دنیا کوئی عالم دین حنفی ان 1200 سال نہیں گزرا جدہ اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہو گیا. ادایا شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف، بخاری شریف نال کے لینا دینا. وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. ہم فرے کے اطرافات جو کتاب ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سنیوں نے مل کے انگریزوں سے یہ کتاب لکھوائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی دلیل بتاؤ، کوئی دلیل. جھوٹے نہیں، اس کے پاس دلیل. یہ جھوٹ بول رہا ہے. بلکہ وہابی جو ہے نا وہ انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں لارنس آف عربیہ کی ویڈیو، آپ کو معلوم ہو جائے گا. انگریزوں نے خود فلم بنائی ہے کہ وہابی ہمارے ساتھ رہیں. تاریخ نجد و حجاز آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہابیوں نے کس طرح مسلمانوں کا نقصان کیا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بکواس نہیں کرتے بخاری مسلم پر، اس پر اجماع ہے، بکواس یہ کرتا ہے. اہل سنت و بخاری مسلم کا ادب احترام کرتے ہیں. ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے، ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے، دورہ حدیث ہوتا ہے. بکواس یہ کرتا ہے بخاری پر مسلم پر. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح یہ امام بخاری پر بکواس کر رہا ہے، امام مسلم پر بکواس کر رہا ہے. دیکھیے مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں.
लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। जी दोस्तों, आपने देखा इमाम बुखारी पर इसने ये बकवास की है कि इमाम बुखारी हदीसें छुपाते थे। कंट्रोल से हदीस लाए, हदीसें छुप तो नहीं सकती। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ की वो हदीस लाए, तो क्या बताना चाहा कि इमाम बुखारी हदीसें छुपाते थे। इसको कहते हैं बकवास। खुद बकवास कर रहा है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहा है। और इमाम मुस्लिम पर इसने क्या बकवास की है, झूठ बोला है इमाम मुस्लिम पर, वो भी देखिए। हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरह की बकवास इसने इमाम मुस्लिम पे की है, झूठ बांधा है इमाम मुस्लिम पर। तो इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार शख्स है ये। कुरान पर झूठ बोलता है, अहादीस पर झूठ बोलता है, बुखारी मुस्लिम पर झूठ बोलता है, बकवास करता है, अइम्मा अरबा पर बकवास करता है, मुहद्दिसीन पर बकवास करता है। अच्छा अली भाई ये बताएं, नमाज़े जनाजा पढ़ ली, नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगी? नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद कब्र पे दुआ है। नमाज़े जनाजे के बाद तो साबित नहीं है ना दुआ। नमाज़े जनाजा के फौरन बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है ना, ये भी साबित नहीं है। और फर्ज नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगते हैं ना जो बंदी, वो भी साबित नहीं है। और जो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है वो चैप्टर ही है कब्र पे दुआ वाला। वहाँ से बरेलवी हदीस पेश करते हैं कि जब यानी आप भाई को दफना, वो पूरी हदीस लेना कि जब भाई को दफना चुको फिर उसकी कब्र पे उसके लिए सवालों की इस्तकामत की दुआ मांगो। दोस्तों, बड़े आपने फरेबी मक्कार झूठे देखे होंगे, लेकिन इस बंदे जैसा झूठा आपको नज़र नहीं आएगा। किस तरह झूठ बोल रहा है। इससे जब सवाल हो रहा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ जो होती है उस बारे में, कहता जो बरेलवी दलील लेते हैं हदीस से, उससे ऊपर बाब ही बांधा गया है कि कब्र में रखने के बाद, दफनाने के बाद दुआ करना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो बाब क्या है और इसने झूठ क्या बांधा है। हदीस नंबर 3199, उसके ऊपर बाब है, बाब दुआ लिल मय्यत, मय्यत के लिए दुआ करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अल मय्यत, जब नमाज जनाजा पढ़ चुको, फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। नमाज जनाजा जब पढ़ चुको तो उसके लिए फिर दुआ करो। तो ये नमाज जनाजा के बाद दुआ का जिक्र है और अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया और ये हमारी दलील है। और उसके ऊपर बाब दुआ लिल मय्यत, लेकिन इसने धोखा दिया, दूसरी हदीस को लिया और बाब भी और लिया। वो हदीस भी और है और वो बाब भी और है। और जो नमाज फ़र्ज के बाद दुआ की बात कर रहा है, इस पर मेरा पूरा लेक्चर है 69 नंबर, आप उसको देखें कि नमाज फ़र्ज के बाद दुआ है। आइए इसका देखिए 42वां झूठ। शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह एक हक गो आलिम दीन, और 28 मई 2008 से लेकर उनकी वफात तक अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इन कांटेक्ट रहा। और आखिरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई, वो कोमे की हालत में थे। 31 अक्टूबर 2013 को, उससे 10 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर जनाजे में भी शमूलियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दफनाने तक मैं आखिर तक वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल रहा। और शेख साहब एंड तक मुझसे मोहब्बत करते थे। और उसमें शेख साहब ने बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि जब कभी भी मेरे जो साथी हैं उन्होंने अली भाई के खिलाफ कोई बात की तो मुझे हमेशा फतह अली की नजर आई, और ये हसद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा इसने जुबैर अल ज़ई पर भी झूठ बोला, जिंदों पर तो झूठ बोलता है, मुर्दों पर इसने झूठ बोला कि वो आखिर तक मुझसे मोहब्बत करते थे, वो कहते थे तुम ठीक हो। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। जुबैर ज़ई कहते हैं कि वो गलत आदमी है, फजूल आदमी है, मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने उससे राब्ता ही मुनक़ते कर दिया है। दुनिया में रहते हुए फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पर कि मैंने उस फजूल आदमी को छोड़ दिया, उसे राब्ता मुनक़ते कर दिया है। और ये फजूल आदमी कहता है कि वो मुझसे आखिर तक मोहब्बत करते थे। वो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं, मोहम्मद अली, हाँ जी, मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी। लेकिन अमीर माविया के बाद अमीर जो पॉलिटिक्स है ना, जी जी जी, वो गलत है जी, सही है। अली जो है ना उसके साथ मेरा कोई राउट नहीं, मैंने खुद रॉकेट काट दिया। अच्छा, से 7,000। अच्छा 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 जी। असल में वो ये है कि वो लोगों को कहता है कि आपके हवाले से बातें करता है ना, आपका नाम भी इस्तेमाल करता है ना वो लोगों के सामने। तो क्या पता है ना, तो उसके लिए नुकसान दे रहेगा। मुझसे कोई यदि पूछेगा तो मैं कम अज कम अल्फाज में ये कहूँगा कि मोहम्मद अली गलत है, वो गलत कहता है।
जी दोस्त, आपने देखा किस तरह इसने एक फौतशुदा आदमी पर झूठ बोला और वो खुद क्या कह रहे हैं कि मैंने उस फजूल आदमी से राब्ता मुनक़ते कर दिया है। अब आइए देखिए इसका झूठ नंबर 43। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, जी एक बद्दू आ गया, राबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस से रवायत कर रहा है, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। जी क्या कह रहा है कि इनकी जो दलील है दूर की किताब में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक दूर की किताब है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो कहेगा कि बुनियादी किताब है हदीस की। कितना झूठा है, अपने आप को झूठा कह रहा है। और ये जो बात कर रहा है गुस्ताखी की, इस पर मेरी वीडियोज़ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप देखिए कि अपने आप को कैसे झूठा कर रहा है। सर ये जो है ना हवाला इन्होंने मांगा, ये अगर हदीस की बुनियादी किताबें पढ़ें उसमें ये रेफरेंसेस मौजूद हैं। मुस्नद इमाम शाफी एक किताब है हदीस की, और सिर्फ ये हवाला मुस्नद शाफी में नहीं है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी एक बकायदा चैप्टर है जिसका नाम ही यही है। जी दोस्तों, आपने देखा ये मुफ्ती तारिक साहब को जवाब दे रहा है और कह रहा है कि बुनियादी हदीस की किताबों में दूसरा नंबर किसका नाम लिया, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। उधर कह रहा था तो दूर की किताबों में एक हदीस है, दूर की किताब कौन सी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। अभी क्या कह रहा है, बुनियादी किताब है। इसको कहते हैं फिराडी, झूठा, धोखेबाज। मेरे पास एक भाई आए जो कादियानी से मुसलमान हुए थे, नाम नहीं लेता, बिल्कुल स्पेसिफिकली हो जाएगी बात। मैं इतना इशारा छोड़ देता हूं कि वो उनके जो इस वक्त मुरब्बी हैं, बड़े जो है ना खलीफा साहब, उनके करीबी रिश्तेदारों में से। और फिर मुझे वो कहने लगे आपको पता नहीं है कि कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर पैसा कितना है। फिर उसने मुझे कई मौलवियों का बताया कि इस साल उसने कितने मिलियंस रुपीस बाहर से मंगवाए हैं कि हम कादियानियत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। जिहाद कादियानियत के खिलाफ हो रहा है, अपने बुजुर्गों ने जो गुल खिलाए उनके खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा। तो मुझे बताने लगा, मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई, मैंने जज कर लिया। तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ ले जाएं, आप कहीं और जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ये दोस्तों आपने देखा कि मेरे पास एक भाई आए और उन्होंने कहा कि कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करने का बड़ा फ़ायदा है। मुझे उभारने आया कि फ़लाँ फ़लाँ उलमा को भी इतने पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, ये आप गलत जगह आए हैं। ये इसने झूठ बोला है, इसमें 3 झूठ उसने बोले हैं। ख़ुद ये अपने आप को झूठा करेगा अगली वीडियो में, क्योंकि जब इसको जान के लाले पड़े, इसके मानने वाले इसको कहने लगे कि आपने झूठ क्यों बोला, उस आदमी के सामने एतराफ़ भी करता है और बहाना बनाता है कि मैंने इससे तासुर लिया। हालांकि वाज़े तौर पर कह रहा है कि वो भाई आके मुझे कहने लगे कि आप आएँ ये काम करें। तो वाज़े तौर पर इसने कहा और बहाना बनाया गया कि मैंने तासुर लिया, और उलमा पर झूठ बोला इसने और ख़ुद उस आदमी पर झूठ बोला। अब देखें उसका एतराफ़। तो मैं कहता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है, और ये वाज़े हो गया कि इसने झूठ बोल के ख़ुद एतराफ़ कर लिया और नाम लिया रुजू का और माजरत का। झूठ बोला, उससे रुजू क्या होता है, रुजू होता है तहकीक पर। आपने झूठ बोला और झूठ पर वो रुजू कर रहा है। तो उसमें मैंने यही बात की थी कि इनकी बातों से मैंने ये तासुर लिया या मैंने समझा इस तरह, और सिर्फ मैंने नहीं समझा, उस्मान भाई ने भी। क्यों जी उस्मान भाई? मैं जनाब आप सब लोगों की मौजूदगी में, जहाँ जितने भी 100 के करीब लोग बैठे हैं, मैं पर्सनली यानी शमसुद्दीन भाई से माजरत करता हूँ कि मैंने इनकी बातों से जो तासुर लिया, वो उनकी क्लैरिफिकेशन के बाद तो अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो मैं अपने उस मामले में रुजू करता हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाकई भी कितना बड़ा झूठा है। आज तो पकड़ा गया इसलिए कि इसके पीछे डंडा था, और जितने इसने पहले झूठ बोले हैं, उलमा अगर इसके पीछे डंडा चढ़ाते तो ठीक हो जाता। ये उलमा की शराफत है कि इसको डंडा नहीं चढ़ाते। जिसने इसको डंडा चढ़ाया फ़ौरन ठीक हो गया और रुजू कर लिया, रुजू का बहाना, हालांकि बोला उसने झूठ था। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताब तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। जी दोस्तों, आपने देखा कि हदीसें छुप तो नहीं सकती। इमाम बुखारी ने यह हदीस लाए, कंट्रोल सी हदीस लाए, और इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ किया, पूरी हदीस लाए। यानी ये झूठ इसने बोला कि इमाम बुखारी ने हदीस को छुपाया है। अब आगे देखिए कि कहता है कि इमाम बुखारी कितमान हक नहीं करते, इन हदीस नहीं छुपाते।
تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا، وہ کتمان حق نہیں کرتے تھے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اس نے کس طرح جھوٹا بنا دیا۔ اب آئیے اس کا جھوٹ نمبر 48 دیکھیے۔ مصنف عبدالرزاق میں نور والی حدیث بریلوی آزاد اکثر پیش کرتے ہیں، تو مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ اگر مفتی اکمل صاحب کو چاہیے پہلے مصنف عبدالرزاق کا وہ چیپٹر ثابت کریں۔ یہ بریلویوں نے کوئی 15-20 سال پہلے چیپٹر کہیں سے دریافت کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مواہب الدنیا میں یہی حدیث جابر والی، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پہ اس حدیث کو لاتے ہیں۔ امام احمد بن محمد بن ابی بکر قسطلانی، المتوفیٰ 923 ہجری۔ اب اس نے یہ کہا کہ یہ بریلوی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو بنایا ہے۔ اگر یہ آج اس کو بنایا گیا، 15 یا 20 سال پہلے بنایا گیا، تو 400 سال پہلے اسی حدیث کو امام قسطلانی لکھتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے اہل سنت پر کہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس حدیث کو لکھا ہے کہ وہی حدیث 400 سال پہلے امام قسطلانی اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیے، امام عبد الغنی نابلسی، ان کی کتاب الحدیقۃ الندیہ، اس میں اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 300 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اب یہ بنائی ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ المتوفیٰ 1014، وہ بھی اپنی کتاب المورد الروی فی المولد النبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں صفحہ نمبر 40 پہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ فتاوی حدیثیہ میں علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 974 ہجری، یعنی 400 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی فتاوی حدیثیہ، صفحہ نمبر 247 پہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1052 ہجری، مدارج النبوہ میں وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بریلویوں نے 15 یا 20 سال پہلے حدیث بنائی ہو اور اس حدیث کو 400 سال پہلے بزرگ لکھ رہے ہوں، اس حدیث کو 300 سال پہلے بزرگ لکھ رہے ہوں، اس حدیث کو 200 سال پہلے کتابوں میں لکھا جا رہا ہے؟ تو آپ کو یقین ہوگا کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ حدیث موجود تھی مصنف عبدالرزاق میں، بعض میں وہ جو ابواب تھے گم ہو گئے، یا بلکہ گم کر دی گئے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان موجود تھی۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو حدیث ہے کہ اے جابر، سب سے پہلے، تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، ہمارا عقیدہ کیا اس بارے میں آپ دیکھیے۔ شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ، آپ فرماتے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ فتاوی رضیہ میں لکھتے ہیں، اور یہ کتاب آپ کے سامنے اس میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ تو عبدالحکیم شرف قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ لیجیے اب تو اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ دوستو یہ جھوٹ تھا اس کا 48، اور اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو میری ویڈیو ہے 266، اس میں اس نے مزید دھوکے دیے ہیں، میں نے اس میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اب آئیے اس کا جھوٹ نمبر 49 اور 50۔ دوسرا نظریہ، سیکنڈ سکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز۔ اور اس میں بھی دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل۔ ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر، دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور ان کے جب دلائل پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا، میں اسی لیکچر کے دوران میں نے بڑی کمپیریٹیو اسٹڈی کی، غلام رسول سعیدی صاحب اتنے علمی آدمی ہیں، شرح صحیح مسلم میں انہوں نے واقعہ معراج پہ صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں۔ اب جہاں تک وہ حدیثوں سے لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں، پھر وہ جب گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا، جو گپ شپ چل رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب کی گپ شپ، اس قسم کی جب وہ گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نیچے حوالے ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سعدی شرازی کے اشعار ہیں، مولانا روم کے اشعار ہیں، تو وہ شعر ان کے دلائل ہوتے ہیں۔
भाई वाकया मिराज इतना बड़ा मौजज़ा है, किताबो सुन्नत में मौजूद है। तो ये बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम है सूफिया की। जैसे वो गुलाम परवेज जितना बड़ा मुजरिम है ना, वल्लाह उतना ही बड़े मुजरिम ये लोग भी हैं, बल्कि उससे बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि आधा सच खतरनाक होता है। गुलाम परवेज की तो गुमराही लोगों पर अया हो गई ना इनकार करके, इन मनुसों की तो गुमराही पता ही नहीं लोगों को चलती। पढ़ते बुखारी और मुस्लिम है, आगे फिर 7 इशार के अंदर सारे मामला दाखिल करते हैं। ये उससे बड़े गुमराह है। लेकिन ये आप देखें, ये दामद बरकातुहु आलिया हैं, ये मुद्दा जिल्लहु हैं, और मर जाएंगे तो रहिमहुल्लाह होंगे। ये गुलाम परवेज की तो गुमराही लोगों पर अया हो गई ना इनकार करके, इन मनुसों की तो गुमराही पता ही नहीं लोगों को चलती। पढ़ते बुखारी और मुस्लिम है, आगे फिर 7 इशार के अंदर सारे मामला दाखिल करते हैं। ये उससे बड़े गुमराह है। दोस्तों कितना गिरा हुआ आदमी है और इसका अखलाक कितना गिरा हुआ है। पहले तो कहता है कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं। कोई बंदा उस्ताद को मनहूस कहेगा, उस्ताद को गुमराह कहेगा? यही एक बंदा है जो उस्ताद को मनहूस कह रहा है और मौलाना तारिक जमील साहब को मनहूस कह रहा है, जाके उनके हाथ भी चूम रहा है। झूठ नंबर 49 का यह है कि इसने अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधा है कि मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इनके पास दलाइल नहीं है, बस गपशप लिखते हैं, कोई दलील नहीं। हालांकि आप पढ़ें शरह सही मुस्लिम सफ़ा नंबर 671 से लेकर 781 सफ़ा तक पढ़ें, आपको कुरान हदीस से आपको दलाइल मिलेंगे। बेहतरीन तहकीक है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की, और इसने गपशप का नाम लिया। किस तरह झूठ बांधा है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह पर, एक मुहक्किक पर। आप किताब उठाएं शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर उसका है 671 से 681 तक पढ़ें, आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार फिराडिया है। और झूठ नंबर इसका 50 है। डॉक्टर ताहिर कादिर साहब पर भी झूठ बांधा। उनकी किताब फ़लसफ़ा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान और अहादीस से किस तरह मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साबित करते हैं। और इसने मनहूस कहा तो उन मनहूसों की हाथ चूम रहा है।